بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام احوال پشاور کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ملک حسین محمد۔ ناظرین، 8 فروری کو پاکستان کے الیکشن ہو گئے۔ 8 فروری کے الیکشن کے بعد خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی حکومت بن گئی اور مرکز میں نون لیگ کی حکومت بننے جا رہی ہے، اور خیبر پختونخوا کے نامزد وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور صاحب ہوں گے۔ آج اس پروگرام میں ہم خیبر پختونخوا کے کیپٹل پشاور کی عوام سے بات کرتے ہیں کہ آپ نے 8 فروری کو کس جماعت کو ووٹ دیا، کس پارٹی کو ووٹ دیا اور کیوں دیا، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی ووٹ کی طاقت سے جو خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت آنے والی ہے اور آ رہی ہے، وہ آپ کے جو مسائل ہیں وہ حل کر پائیں گے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا تعلق کس علاقے سے ہے؟ میرا تعلق اسی علاقے سے جہاں اس وقت کھڑے ہیں، سکندرپورہ۔ سکندرپورہ۔ یہ پی کے 83 83 جی بالکل۔ ووٹ کس کو دیا تھا؟ ووٹ ون اینڈ اونلی عمران خان، وہ ہمارے حق کی بات کرتا ہے اس لیے اس کو ووٹ دیا ہے۔ تو اس کا جو یہاں پہ امیدوار تھا پی کے 83 کا مینا افریدی۔ مینا خان افریدی۔ اچھا، یہ بتاؤ جو ووٹ کس وجہ سے دیا آپ؟ عمران خان نے ہر جگہ دنیا میں ہمارے حق کے لیے آواز اٹھائی ہے، پاکستانیوں کے لیے آواز اٹھائی ہے، اور اسٹل وہ جو ہے جیل میں بھی ہم لوگوں کے لیے وہ جیل میں پڑا ہوا ہے، تو اسی لیے اس کو ووٹ دیا ہے اور آئندہ بھی دیں گے انشاءاللہ۔ امید تو ہے کہ ہمارے ووٹ دینے کی وجہ سے وہ انشاءاللہ نکلے گا، کیونکہ اس پہ جو سارے کیسز ہیں وہ سیاسی نوعیت کے ہیں، تو انشاءاللہ ضرور نکلے گا۔ جب عدالتیں کیس سنیں گی تو لازمی وہ نکلے گا، انصاف ملے گا۔ انصاف ملے گا۔ یہ بتاؤ، ووٹ آپ نے خیبر پختونخوا کے کیپٹل پشاور کے پی کے 83 کو دیا ہے نا، اور انسان ووٹ اس لیے دیتا ہے کہ یار آپ کے اس ووٹ کی وجہ سے آپ کا جو امیدوار ہے صوبائی اسمبلی کا اور قومی اسمبلی کا، وہ آپ کے علاقے آپ کے حقوق کے لیے کام کرے، ٹھیک ہے؟ یہی ہوتا ہے نا۔ آپ کیا سمجھتے ہو کہ اب تو خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت آ گئی ہے، ٹھیک ہے، ان کا نامزد وزیر اعلیٰ جو ہے وہ علی امین گنڈاپور ہے، تو اب ہمارے خیبر پختونخوا کی اسپیشلی خاص کر میں بات کروں پشاور کے لیے کون کون سے کام جو 3 پروجیکٹ ہیں وہ کرنے چاہیے، ضروری ہے؟ پہلے تو سب سے پہلے ہماری گورنمنٹ نے اعلان بھی کیا صحت کارڈ، یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ غربت اس وقت انتہا کی حد تک بڑھ چکی ہے، تو یہ بہت بڑا ایفرٹ ہوگا۔ سب سے پہلے انہیں اعلان بھی کیا کہ ہم بحال کریں گے، اور دوسرا وہ سڑکیں اور گلیاں یہ تو بند ہی رہتی ہیں، یہ تو آہستہ آہستہ یہ بھی ہوتا رہے گا، اور تیسرا جو ہے مہنگائی کم ہونی چاہیے۔ مہنگائی کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ ڈسٹرب ہیں۔ مہنگائی کیسے کم ہوگی؟ حکمران کم کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ حکمران کم کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں، لیکن اگر ان کی نیت ہو تو، نیت خالص ہو اور وہ قوم کے لیے درد رکھتے ہوں تو ضرور کم ہو سکتی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا ووٹ کس علاقے میں ہے؟ میرا ووٹ پی کے 82 میں کامران خان منگش۔ کامران خان منگش ہو تو ہار گئے نا؟ نہیں، بس آپ کو اچھی طرح پتہ، ہار گئے کہ ہروایا گیا ہے؟ ہروایا گئے ملک طارق صاحب کی طرف سے۔ اچھا، 6ویں نمبر پر ایک آدمی آ کر پہلے نمبر پر کیسے آ سکتا ہے؟ یہ تو ہماری ایسی افواہ باتیں کہ چلے یار یہ، لیکن میں تو خود اندر پولنگ ایجنٹ بیٹھا تھا، ہمارے علاقے سے ملک طارق نے 49 ووٹ اور کامران منگش نے 1270 ووٹ، تو کہاں پر کدھر 49 اور کدھر 1270؟ ٹھیک ہے۔ اب یہ بتاؤ، ووٹ آپ نے کیوں پی ٹی آئی کو دیا؟ ووٹ ہم نے پی ٹی آئی کو اس لیے دیا کہ بس ہماری خان صاحب کے ساتھ محبت ہے، ہم سیاست میاست نہیں کرتے، ہمارا عشق ہے، ہمارا جنون ہے خان صاحب کے ساتھ۔ دوسری بات یہ کہ آپ غور کریں اس بات پر کہ دیکھیں، ایک بندہ جس پر کتنی 3 بار قاتلانہ حملہ ہوا ہے، ایک بندہ جس پر گولیاں لگی ہے، ایک بندے کو، ایک بندہ جس پہ 200 سے زیادہ تاریخ ہے نا، تاریخ میں 200 سے زیادہ کیسز اس پر درج ہوئے، ایک بندہ جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے، اور وہ پھر بھی اس کا کیا کہنا ہے، وہ کہتے ہیں یار کہ یور کیپٹن از ریڈی ٹو فائٹ، آپ کا کپتان ڈرا نہیں، آپ کا کپتان تیار ہے جنگ کے لیے۔ کوئی ایسا بندہ مجھے اگر پی ایم ایل این میں اگر نواز شریف کہہ دے کہ یار مجھ پہ 200 کیس ہوئے اور میں نہیں بھاگتا، اگر ہاں زرداری کہہ دے کہ یار مجھ پہ کیس ہوئے اور میں نہیں بھاگتا، لیکن اگر انسان ہے نا اپنی ذہن تک بھی ہے، اگر ایک بندہ اب پیپل پارٹی والے مجھے یہ بتا دے کہ اب بلاول یہ اس ملک کو صحیح کر سکتا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ووٹ کس علاقے میں ہے؟ ووٹ اسی پی کے 83 میں ہے، پی کے 83 میں مینا خان افریدی۔ مینا خان ووٹ افریدی۔ کس کو دیا؟ ووٹ ہم نے جی پی ٹی آئی کو دیا ہے۔ کیوں دیا پی ٹی آئی کو؟ پی ٹی آئی کو اس لیے دیا ہے جی کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ جو کام کر رہی ہے وہ بنیادی کام کر رہی ہے۔ کیا بنیادی کام؟ بنیادی کام یہ ہے کہ یہ دیکھیں آپ، جو عمران خان ہے وہ جو بنیاد خراب ہوئی ہے جو دوسرے سیاستدانوں نے کی ہوئی ہے، کہ پاکستان کا جو ہے بالکل ہی نقشہ انہوں نے بدلایا ہوا تھا۔ عمران خان نے آگے جو بنیادی کام یہ بیوروکریسی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی ہے، مطلب یہ نیچے جتنا طبقہ سرکاری ان پر عمران خان نے بڑا کام کیا ہے جو اس سے ہو سکتا تھا، اور باقی آپ کو پتہ ہے کہ سارا جو ہے 30 سال سے 40 سال سے ان کا اقتدار ہے، تو انہوں نے اپنے پنجے جو ہے وہ ان اداروں میں جو ہے وہ فکس کیے ہوئے ہیں، تو ان کو توڑنا ذرا مشکل ہے۔ یہ ابھی بتاؤ، پی کے 83 کی بات کروں، ووٹ آپ نے پی کے 83 میں پی ٹی آئی کو دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ووٹ کی وجہ سے خیبر پختونخوا میں حکومت پی ٹی آئی کی آ گئی ہے، اسی طرح نا وزیر اعلیٰ بھی آ گیا علی امین گنڈاپور۔ انشاءاللہ
अब ये बताओ PK83 की बात करें, PK83 के बड़े 3 मसाइल जो आप समझते हैं ये सबसे पहले हमारे CM साहब को, हमारे हलके के जो उम्मीदवार हैं उनको, और फिर कौमी असम्बली के हमारे NA32 लगता है यहाँ पे, उसको इस हलके के पहले 3 बड़े मसाइल हल करने चाहिए? हल्के के तो मसाइल काफ़ी हैं, लेकिन जो बड़े मसले हैं 3, मेरे हिसाब से आजकल तो गैस का बहुत बड़ा मसला चल रहा है। गैस यहाँ पे नहीं होती? गैस यहाँ पर होती भी है और बाज़ इलाकों में होती है और ज़्यादातर में नहीं होती, तो लोग सिलेंडर पर आगे भी ले जाते हैं, उससे भी काम नहीं हो रहा। तो मेन मसला तो ये है गैस का। दूसरा मसला जो है इधर जो है सफाई का मसला है। सफाई जो है, हाँ, निकासी भी वाले काम नहीं कर रहे? काम कर रहे हैं, लेकिन उस तरतीब से नहीं कर रहे जो पहले हो रहा था। जब से खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान की गवर्नमेंट गई है तो ज़रा काम स्लो हो गया है। तीसरा मसला जो है मेरा हिसाब से बेरोज़गारी है, वो तो हर इलाके का ही मसला है, लेकिन पाकिस्तान का मसला। हाँ पूरे, लेकिन हम तो अपने इलाके को देखेंगे ना। तो बेरोज़गारी की बात करें, फिर वो जो लोग बात करते हैं कि जी खान साहब ने कहा था कि मैं 1 करोड़ नौकरियाँ और 50 लाख घर बनाऊंगा, 3.5-4 साल उन्होंने हुकूमत की है, लेकिन वो उस तरह अपने वादे पूरे नहीं कर सके। आप समझते हैं कि अभी अगर इनकी गवर्नमेंट आ जाती है वफाक में अगर, तो आप समझते हैं कि ये मामलात हल हो जाएंगे, नौकरी 1 करोड़ मिल जाएंगी, 50 लाख घर बन जाएंगे? जनाब ये 1 करोड़ नौकरियां तो उन्होंने कहा था ना, ये कोई पूरा वो तो नहीं था कि 1 करोड़ देंगे, लेकिन काफ़ी उन्होंने दी भी हैं। 50 लाख घर का जो कहा था उसमें काफ़ी बने भी हैं, लेकिन गवर्नमेंट तो उनकी चली नहीं है। 3.5 साल में कोरोना आ गया है, इसमें अब इमरान खान को तो पता नहीं था कि मैंने जो वादे करने उसमें कोरोना भी आ जाएगा। ये दुनिया के लेवल पे एक वबा आई थी, आलमी वबा आई थी, इसमें इमरान खान का तो कोई कसूर है नहीं। अगर उसको 5 साल पूरे मिलते और कोरोना बीच में ना आता तो इंशाअल्लाह काफ़ी हद तक ये वादा पूरा हो जाता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद वहीद। वही साहब, वोट किस इलाके में है? बोर्ड कारपोरेशन कॉलोनी में, दलाजाक रोड। PK82-83? PK82। 82। PK82 में कौन था आपका? मलिक तारक। मलिक तारिक साहब जीते हैं ना? हाँ जीते। जीते कि जितवाए गए हैं? वो भी जो भी है, लेकिन हमने मलिक तारक को वोट दिया है। अच्छा, क्यों मलिक तारिक को वोट दिया? बस वो मेरे इलाके का बंदा था, वो 10 काम बगैर इसके भी करता था, वो आगे भी करेगा। पिशावरी बंदा है ना? पिशौरी बंदा है। उसके बारे में ये भी मशहूर है कि बंदा बड़ा काम करने वाला है। बिल्कुल, वो उसने इससे पहले भी गैस का काम था, उसने हमारे इलाके में बहुत सा काम कराया है। अच्छा, और अभी वो नून लीग में शामिल हो गए हैं? बिल्कुल नून लीग में शामिल ये हो गए। बताएं, नून लीग में उनकी हुकूमत आ गई है, ठीक है, तकरीबन आ जाएगी आजकल में ही। आप क्या समझते हैं कि इनकी इस हुकूमत को, आपके इस उम्मीदवार को, आपके इलाके PK82 के लिए ये बड़े 3 काम है जो आप समझते हैं वो करने चाहिए? कौन से बड़े 3 काम होने चाहिए पहली प्रायोरिटी पे? सबसे पहले जो है बिजली का मसला ये हल होना चाहिए, और गैस का मसला हल होना चाहिए, पानी का मसला हल होना चाहिए। पानी भी नहीं है? पानी है लेकिन बहुत कम यार आप ना। और सफाई का मसला जो है वो सबसे बड़ा है कि इलाके का सफाई का मसला हल होना चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताएं, मैं अब ये सर्वे हम कर रहे हैं, बेशतर इलाकों में पेशावर की बात करूं तो ना पानी, ना गैस, ना बिजली, तो फिर ये क्या मामलात होंगे, कैसे होंगे? ये हुकूमत का काम है, खामखा हमने वोट दिया है तो वो इसका बंदोबस्त करेगी। अच्छा। क्योंकि वो अब जिम्मा हमारा काम तो ये वोट देना था, हमने वोट दे दिया है। तो आगे आपने वोट जिस मकसद के लिए दिया है वो मकसद पूरा हो जाएगा? बिल्कुल इंशाल्लाह हो जाएगा। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कहाँ से हैं आप? मैं इधर से हूँ, गुलबहार से हूँ। गुलबहार। वोट किस हल्के में है? वोट BC हल्के में। PK83? हाँ जी, PK82। 82 आता है? जी अच्छा। जी जी। ये वोट किसको दिया आपने? बंगश को। बंगश को? कामरान तो फिर बंगश। PK82 में आता है? बिल्कुल। जी जी जी। बंगश साहब तो हार गए ना? हाँ जी, बस हार गए हैं। तो बंगश को वोट देने का मतलब ये कि आपने PTI को वोट दिया? बिल्कुल उनको वोट क्यों दिया। दिया PTI को? बस PTI ने यहाँ पे काम किया हुआ है। क्या काम किया यहाँ है? पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो उन्होंने सही किया है। हॉस्पिटल्स की सिचुएशंस को अगर आप देखें, मेरा फार्मा से ताल्लुक़ है, तो हॉस्पिटल्स में उन्होंने बहुत काम किया है। हेल्थ कार्ड उन्होंने इशू किया है, बाकी चीज़ों को उन्होंने बहुत इम्प्रूव किया था। अभी तो शहर नापरसान है, गंदगी का वही ढेर है, गुलबहार से गुलबहार बन चुका है, ना कोई पूछना है, ना कोई आता है, ना कोई जाता है। तो ये सारी सिचुएशन है, सबको नज़र आ रही है कि क्या पोजीशन हो रही है। आप समझते हैं कि आपके वोट देने से जो गुलबार आप कह रहे हैं वो गुलबार बन जाएगा दोबारा? यार हमने तो इसी वजह से इनको वोट दिया कि जब तक ये लोग मौजूद थे तो जितनी सैनिटेशन के जितने लोग थे वो प्रॉपर अपने टाइमिंग पे आते थे। अब किसी को कोई पूछने वाला नहीं है। अगर नाली बंद है, अगर गंद पड़ा हुआ है, तो कोई आके ये नहीं पूछता कि ये क्यों पड़ा हुआ है, किस लिए पड़ा हुआ है। तो ये नाज़मीन जो चेयरमैन बैठे हैं, काउंसलर, वो क्या करने बैठे हैं? चेयरमैन जो है ना, जितनी अनसर्टेनिटी इस टाइम मुल्क में है, अगर आप उसको देखें तो आप खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। कोई भी अपनी जॉब को फुलफिल करने के लिए तैयार नहीं है। सिंसियर नहीं है? नहीं है। नाउमीदी, मायूसी है? इंतहाई। क्यों? खान नहीं है इस वजह से? बस खान भी अंदर है ना, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है। आप देखें क्या चीज़ सही हो रही है, किन लोगों को हम लोग ऊपर लेके आए हैं। अगर आप उनके करैक्टर को उठा के देखें, सारे चोर ऊपर बैठे हुए हैं, चोर।
अगर उन चोरों के ज़रिए हमने इस निज़ाम को ठीक करना है ना, तो ये निज़ाम कभी भी ठीक नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका वोट किस हलके में? हमारा इस हुसैनाबाद के हल्के में है, पीके 82 PK 82 जी। पीके 82 में वोट किसको दिया था? वोट तो ये तो बताने की बातें नहीं है कि किसको दिया था, अब इलेक्शन हो गए ना, अब तो वोट दे दिया आपने। बस ये आज़ाद को दिया था वोट हमने। आज़ाद को मतलब आज़ाद में अब कौन से थे? एक पीटीआई वाले आज़ाद थे, एक दूसरे आज़ाद थे। जी पीटी, बस दोनों में से कोई समझ लें आप। अच्छा चलें, अगर आपने पीटीआई वाले को दिया तो फिर तो पीटीआई की हुकूमत आ गई है ना? जी जी आ गई है ठीक है ना? जी जी आपका वोट रंग ले आया। जी। ये बताएं, वोट किस मकसद के लिए दिया था पीटीआई को? वोट इस मकसद के लिए, वोट तो हम इस मकसद के लिए देते हैं कि कोई अच्छा तरीक़ाकार हो। हमें तो कुछ चाहिए नहीं, हमें तो गैस चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, सफाई चाहिए। हमको कुर्सी तो नहीं मांगते हैं ऐसे कि हमें कुर्सी चाहिए, हमें बस इस चीज़ के लिए वोट दिया था हमने, अपनी सहूलत के लिए दिया था। तो अब जिस मकसद के लिए वोट दिया है, आप जो सहूलतें मांगना चाह रहे हैं, गैस, बिजली, पानी, सफाई, आप समझते हैं आपका वो उम्मीदवार अब इक़्तिदार में आके आपके वो मसाइल हल करेगा, वो सहूलियात फराहम कर सकेगा? जी उसको चाहिए कि वो करे। अगर उसको फ़ंड मिलेंगे, उसको तो बताया जाएगा कि ये काम करो तो वो करेगा। उसके फ़ंड नहीं होगा तो वो घर से तो नहीं लगाएगा, ये हमारे टैक्सों के पैसे से ही वो खर्चा करेगा यहाँ पर। टैक्स तो हम लोग नहीं देते हैं। जी हम ज़्यादातर आवाम। हम तो देते हैं, हम तो फाइलर हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जी हाँ मेजॉरिटी मैं बात कर रहा हूँ जी 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 हाँ। तो उनको उसको फ़ंड मिलेंगे तो वो काम करेगा, उसको फ़ंड नहीं मिलेंगे तो वो क्या करेगा, घर से तो नहीं खर्चा करेगा वो। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका वोट किस इलाके में है? 82 जी। 82 इसी इलाके में? 82 हाँ जी। ऐसे में किसको वोट दिया? पीपल्स पार्टी को जी। पीपल्स पार्टी, जियाला भट्टो जिंदाबाद। हाँ जी जी। अच्छा, भट्टो की हो सकता है, चाहिए ना, साफ झूठ बात नहीं करनी बोलना चाहिए, चाहिए। ऐसे ही जी है। जी। भट्टो की हो सकता है हुकूमत आज है ना, बिलावल भट्टो साहब लगे हुए हैं, उनका भी ये मामलात चल रहे हैं कि सदारत की कुर्सी हमें दे दो और वज़ीर-ए-आज़मशिप आप ले लो, तो आजकल में फ़ैसला हो जाएगा तकरीबन। ये बताएं, आप लोगों की हुकूमत अगर आ गई तो 3 बड़े मसाइल जो आप समझते हो उस पेशावर के इस हलके के वो हल होने चाहिए। जी कौन से 3? कौन से 3 बड़े मसाइल हैं? इंशाल्लाह बिजली का मसला, गैस का मसला और ये जो साफ पानी का मसला, ये हल हो जाएगा। इससे पहले भी जरदारी साहब ने 5 साल गुजारे थे, उसमें धमाके भी थे, हालात भी ख़राब, लेकिन फिर भी हर चीज़ सस्ता था, महंगाई नहीं थी माशाल्लाह। 5 साल उसने बहुत बेहतर हुकूमत चाहिए और इस तरह हम और भी उम्मीद रखते हैं अभी भी 5 साल अगर वो गुजारे तो इंशाल्लाह बेहतरी आएगी इस मुल्क में। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वोट किसको दिया था आपने? वोट जी हमने एक बिलौर को दिया था, एक मौलाना फजल रहमान के पार्टी को दिया था, दोनों को दिया था। अच्छा, बड़ा वोट मेरा ख्याल NA32 का बिलौर साहब को दिया जी जी। और छोटा वोट है PK 83। रियासी मौलाना फजल रहमान को दिया। अच्छा, तो आपके इस हल्के में जो दोनों वोट हैं, बड़े गुलाम साहब भी हार गए हैं और मौलाना फजल रहमान साहब भी हार गए हैं। जी जी। इसमें मेरा ख्याल NA32 का जो कहूँ तो वो आसिफ खान PTI से जीता है और PK 83 से मीना खान अफरीदी जीता है। बिल्कुल जी। इसी तरह है ना। अभी बताइए, जो दोनों कैंडिडेट जीत गए हैं PTI वाले, हुकूमत भी PTI की आ गई है, आप क्या समझते हैं कि आपके इस हल्के में क्या ऐसे मसाइल हैं सबसे पहले इस उम्मीदवारों को चाहिए कि वो आएँ, हमारे ये मसले पहले हल करें? अरे सर जी, हमारे इलाके में मसाइल पहले भी थे, अभी भी होंगे। ये जो है 10 साल इन्होंने हुकूमत की है, तो गैस का मसला वहीं का वहीं है, सफाई का मसला वहीं का वहीं है, और ये अपनों में लगे हुए हैं बंडर बांड में, आवाम का नहीं सोचते। तो इधर तो काफ़ी मसाइल है। 10 साल पहले भी इन्होंने हुकूमत की है। पहले वज़ीर आला था वो परवेज़ खटक साहब, उन्होंने वडे बाज़ार पे जो कैंडागार है उस पर पैसे लगाए, करोड़ों रुपये फूड स्ट्रीट पे, फूड स्ट्रीट पे कुछ नहीं बना, उसी तरह वो सर खा रहा है, उसी तरह उधर रश है। और इसी तरह दूसरा फिर महमूद आया है, वो तो बस स्वाद का था और स्वाद में ही काम हो रहे, पेशावर में तो हो ही नहीं रहे थे। तो मकसद ये है कि हमारे लिए ऐसा आदमी होना चाहिए जो पेशावर का मतलब असम्बली इधर है, वज़ीर आला भी इधर का होना चाहिए। अब ये जो मौजूदा वज़ीर आला बना रहे गंडापुर को, ये तो डेर उस्मान खान का है, सही, ये तो उधर ही बस सोचेगा। तो इसका इस तरह आदमी होना चाहिए जिस तरह मतलब आज जावेद था। मतलब आपका कहने का मकसद ये कि वज़ीर आला जो था वो पेशावर के किसी बासी को बनाना चाहिए, पेशावर के आदमी को होना चाहिए, ताकि पेशावर असम्बली इधर है, सब मतलब है सब चीज़ें इधर है, तो इधर का वज़ीर आला। अकरम खान दुरानी बन्नू, हैदर होती जो है वो मर्दान, और महमूद खान स्वाद, परवेज़ खटक नौशहरा, और पेशावर को कोई नहीं पूछता। काम किए हैं, परवेज़ खटक बुरा बंदा नहीं था, काम उसने किए हैं। मगर महमूद ने जैसे ही वज़ीर आला बने 5 साल बैठे, हमने उसकी शक्ल नहीं देखी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका वोट किस हल्के में? मेरा वोट PK 84 में। PK 84 में किसको वोट दिया? मैंने फजल इलाही को। फजल इलाही PTI जी PTI जीत गया ना? जीत गया जी। अच्छा, क्यों PTI को वोट दिया? बस उसका मंशूर अच्छा है। क्या मंशूर उसका अच्छा है? बस उसके मंशूर अच्छे हैं ना,
क्या उससे क्या मंशूर है, हमें भी बताएं, आवाम को पता लगे ना। उसने अच्छे अच्छे काम किए, सेहत कार्ड हो गए, इस तरह और अच्छे अच्छे काम किए, इलाके माली में अच्छे काम किए, गलियाँ कुछ बनाए। सदियों से जो है गली नहीं बन रही थी, इन पीटीआई वाले लोगों ने बनाया। एक जगह पे साइकिल नहीं जा रहे थे, अभी उसका पे रिक्शा जा रहा है। अच्छा, हाँ, ये आप PK84 की बात कर रहे हैं। जी PK84 की बात कर रहे हैं। कदीमी नाले थे वो नहीं बन रहे थे, किसी हुकूमत में नहीं बने, और इस पीटीआई हुकूमत ने जो है वो नालियाँ बना दी। हाँ, तो आपने इस वजह से उनको वोट दिया है, इस इन्होंने काम किया है और वो काम करेंगे। हाँ, काम इंशाल्लाह करेंगे। PK84 के कौन से बड़े मसाइल हैं जो आप समझते हैं कि अब इनकी हुकूमत भी PTI की आ गई है, ठीक है, इस सूबे में, और अब इनको चाहिए कि सूबे के बड़े जो मसाइल हैं, पेशावर की खासकर बात करूँ तो वो हल करें। यार अभी तो जो मेन जो बात है ना रोज़गार का है, तो इंशाल्लाह इस पे भी ये उम्मीद है लोगों के कि यार शायद इस पे भी ये काम करें। तो हमारी भी उम्मीद है कि यार हुकूमत इसके बन गई पेशावर में, तो शायद अच्छे अच्छे काम करें, और उम्मीद है इसे। बाकी तो एक हुकूमत से भी जो है ना उम्मीद नहीं है, और इस हुकूमत से उम्मीद है कि शायद इंशाल्लाह ये रोज़गार का मसला ये भी हल करेंगे, रोज़गार का मसला हल करें। इसका हल करेंगे जी। ये वफाक में तो नहीं बैठे हुए ना, ये तो सूबे में बैठे हैं और फंड वफाक देता है। अगर वफाक इनको फंड ना दे तो फिर तो सूबे वाले कहेंगे हमारा मसला हल नहीं हो रहा, फिर क्या करेंगे? तो फिर देखेंगे क्या करते हैं, बस फिर दमादम मस कलंदर होगा कि नहीं, बस सब्र करेंगे। वही तो होगा, तो मतलब जिस तरह पहले हुआ है। अच्छा, हाँ, तैयार हैं आप लोग भी? तैयार है, क्या करें। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। वोट कहाँ पे है? हम हमारा 75 इन्हें 75 PK29। हाँ, PK29 में किसको वोट दिया? और अरबाब अमीर अयूब को। अरबाब अमीर अयूब को? वो तो जीत गए ना? हाँ, जीत गए। क्यों अरबाब अमीर अयूब PTI को वोट दिया? वो उसने हमारे हल्के में बहुत काम किया है, और रोड एमओडी भी ठीक करवाया, और ट्रांसफार्मर भी ठीक करवाया, और भी बहुत ज़्यादा काम करवाया उसने, और इंशाल्लाह इसके बाद भी करवाएगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। वोट किस हल्के में? वोट के GC हल्के में हमारा का हमारा हल्का। किसको वोट दिया आपने? PTI जी। क्यों PTI को दिया? PTI सब कुछ PTI यार, इमरान खान, कैदी नंबर 804, हर चीज़ निकलेंगे इंशाल्लाह, आएंगे फिर से बैठेंगे, वो भी वज़ीर आज़म बनेंगे। और इनको तो हम मानते नहीं ये कौन है, और ना इनके कुछ वोट हम इनको देने के हम कोई आमादा है, और ना ये लोग हमें पसंद है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हम गरीब लोगों के लिए कुछ करते नहीं हैं। जो किया PTI ने हमारे लिए किया है, खान ने किया है, कैदी नंबर 804, ये हमारे दिलों में, दिमाग में, हमारे आने वाले नस्ल के मन के लिए। अब आप क्या समझते हैं, आपने अपना वोट दिया, आपके वोट की ताकत से सूबे में हुकूमत उनकी बन गई। इस सूबे के कैपिटल पेशावर की बात करूं तो कैपिटल पेशावर के कौन से मसाइल हैं जो आप समझते हैं कि ये हल होने चाहिए? यार असल में मसाइल तो देखें, आप शुरू से देखें तो कोई भी हल नहीं कर सका, और ना ही कोई करेगा। ये PTI जो अभी आई हैं यही करेंगे। हमारे बेसिक जो हमें चाहिए ना, तो क्या चाहिए हमें, काम, हमारा रोज़गार अच्छा होना चाहिए, हमें लाइट मिले, गैस मिले, हमें ये चीज़ें चाहिए, सहूलत, हमें हॉस्पिटल हमारे लिए ठीक हो, और हमें कुछ नहीं किसी चाहिए। तो कह रहे हैं कि जी मसाइल किसी ने हल नहीं किए, तो PTI की हुकूमत थी, मतलब उसने भी हल नहीं किए थे। क्यों नहीं किए जी? आप पीछे सेहत कार्ड चल रहा था, इन लोगों ने बंद किया है, अभी हुकूमत है, ये फिर से बनेगा इंशाल्लाह। गरीब आदमी को और क्या चाहिए? ये बताएं वोट किस हल्के में? वोट मेरे इसी हल्के में सर। कौन सा PK क्या लगता है? 83? ये PK83 है सर। PK83 वोट किसको दिया था? यारा मैंने तो पहली दफ़ा इमरान खान को दिया। पहली दफ़ा इमरान खान को दिया? पहली दफ़ा क्यों इमरान खान को वोट दिया? बस सर वो बंदा ज़रा मुझे अच्छा लगता है। इससे पहले आपने PPP को, नून लीग को, ANP को, जमात को, मौलाना को? ANP को दिए सर। मैं ज़ाती तौर पर ये कहना चाहता हूँ कि ये हमारे मुल्क को एक ऐसा बंदा मिला हुआ है कि इसकी मिसाल कोई और मुल्क में नहीं है। अच्छा, हाँ, फेयर बंदा है सर। अच्छा, हाँ। तो आपके इस वोट की ताकत से खैबर पख्तूनख्वा में PTI की हुकूमत तो आ गई है। जी सर। ऐसा ही है ना? हाँ हाँ। अब आप क्या समझते हैं कि आपका जो वोट का मकसद है वो हल हो पाएगा? आपके जो मसाइल हैं वो हल हो पाएंगे? सर मसाइल तो अपनी जगह पर है सर। हमारी ख्वाहिश ये थी कि ये वज़ीर आज़म आ जाता और मुल्क के मसाइल हल कर लेता, मरकज़ में हुकूमत बना लेता। मरकज़ में हुकूमत बना लेता, तो हमारी तो ये ख्वाहिश थी कि ये मरकज़ी वो कर लेता, सूबे की सतह पर हमारी सोच नहीं थी सर। हाँ, तो अब तो मरकज़ में हुकूमत ना आई ना, अब तो वो नून लीग और PPP बना रहे हैं हुकूमत। हाँ। और सूबे में तो हुकूमत आ गई है। तो अब बताएं कि सूबे में जो हुकूमत है इनको क्या मसाइल हैं, और वो आप समझते हैं कि यार इस सूबे को एक मॉडल सूबा बनाएं, कल को दोबारा इलेक्शन होते हैं तो लोग इस सूबे खैबर पख्तूनख्वा की मिसाल लें कि PTI ने खैबर पख्तूनख्वा को मॉडल सूबा बनाया, और इसके तहत अब हम पूरे पाकिस्तान के अवाम इनको इस वजह से वोट दें। सर जी मैं तो ये कहता हूँ कि सूबे के मसाइल के लिए हमारे लिए तो ये और पार्टियाँ बहुत अच्छी थी। ANP होगी है, ये इनकी सूबे के लिए खिदमत बहुत थी सर। तो मैं तो कहता हूँ कि इसको मरकज़, हमारी वो ख्वाहिश पूरी नहीं हुई सर कि मुल्क की सतह पर ये काम कर लेता, क्योंकि ये कानून साजी के लिए आया है, ये और मसाइल के लिए नहीं आया कि हमारी सड़क ख़राब है और बिजली नहीं है, और ये नहीं, ये
मुल्क की सतह पर इस मुल्क को मतलब ये हमारी ये ख्वाहिश थी कि एक कानून साजी कर लेता मुल्क के लिए। हाँ, अल्लाह करे। और मसाइल के लिए तो ये और पार्टियाँ बहुत थी। हाँ, तो आप समझ रहे हैं कि जी जो नून लीग की हुकूमत मरकज़ में आ रही है वो हमारे मुल्क की मसाइल को हल नहीं कर पाएगी, वो कंप्रोमाइज पार्टी है सर, और वो मसाइल कुछ को वो नहीं कर कुछ तेरा कुछ मेरा। हाँ हाँ, और ये इमरान खान ऐसा बंदा है सर, ये फेयर था सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका वोट किस हल्के में? मेरा वोट PK 83 में। PK 83 में किसको वोट दिया? यार अगर सच पूछे तो मैंने तो इमरान खान को दिया वोट। उसकी पॉलिसी अच्छी है यार। पहले तो उसने सेहत कार्ड का काम किया है पेशावर में, और पेशावर में उसकी अच्छी गवर्नमेंट हो गई थी। हाँ, तो इस वजह से उसको दिए कि सेहत का एक ही काम किया सेहत कार्ड का। मानते तो है ना या नहीं मानते? सब मानते हैं ना, सब मानते हैं। काम अच्छा किया है तो सेहत कार्ड की वजह से तकरीबन हर बंदे को फ्री 10 लाख रुपए तक इलाज की सहूलत मिली है और लोगों ने उसको हासिल भी किया। बिल्कुल हासिल किया है ना, तो अच्छा किया है ना। बाकी काम भी उसके है। ये जो उसने खोला था लंगर खाने, शेल्टर होम तो कम काम है। और क्या चाहते हैं? BRT भी उन्होंने बनाई है। बिल्कुल BRT भी उन्होंने बनाई है, लेकिन चले कुछ काम ऐसे होते हैं। ये शौकत खानम का काम अच्छा नहीं है। ठीक है, बिल्कुल। कैंसर का अस्पताल उसने खोले, किसने खोला है? किसने खोला है आजकल? कोई दो राय नहीं है। मतलब ये वो काम है जिसकी वजह से आपके दिल में खान की मोहब्बत बनी है। मैं 50 साल से PPP में हूँ। मेरा है। बिल्कुल जी, हम PPP में हैं, लेकिन मैंने एक वोट इमरान खान को दिया, दूसरा वोट मैंने ज़ाहिर शाह को दिया। बिल्कुल उसको दिया जी। हाँ, शाह जी ने भी काम किया, कोई शक नहीं है इस हल्के के अवाम के लिए। उन्होंने बड़ी अस्पताल में भर्तियाँ बहुत की हेल्थ डिपार्टमेंट में, और हमें उम्मीद है कि ये और भी इस तरह अच्छे अच्छे काम करेगा। अब ये बताएं, आप क्या समझते हैं कि आपके इस वोट का जो मकसद है वो पूरा हो जाएगा? यार उम्मीद तो है, इंशाल्लाह लोग काम करेंगे। यार जुडिशरी, मेरी बात सुने, देखिए जी, सारे वकील उसके पास आ गए, क्यों आए? क्या वजह है? क्यों आए? बताएं ना, मुझे बताएं, कोई तो बताए। अच्छे अच्छे वकील सारे उसके सपोर्ट कर रहे हैं। ये असम्बली में, मैं तो कहता हूँ कि असम्बली में सफ़ेद शलवार कमीज और काला कोट, सब यही हो बस। पढ़े लिखे आ गए ना यार, पढ़े लिखे लोग आते तो कुछ तो करेंगे ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। 8 फरवरी को वोट कास्ट किया? 8 फरवरी को कुछ मजबूरी की बिना पर वोट नहीं कास्ट किया, क्योंकि मेरा वोट डिस्ट्रिक्ट मानसरा में था और मैं अपनी ड्यूटी की वजह से जो है ना पेशावर में मौजूद था। अच्छा, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। 8 फरवरी को वोट दिया? जी डाला वोट। किसको वोट दिया? वोट तो मैंने बस वोट डाल दिया है। तो मेरा मॉरल सपोर्ट वगैरह जो मेरी थी वो PTI के साथ थी प्रॉपर्ली। दिल आपका जो वो PTI के साथ है और दिमाग आपका नून लीग NP मौलाना के साथ है? बात देना पड़ी, वोट देना पड़ी। जी जी। ये बताएं, जिस जमात को आपने वोट दिया और आप क्या समझते हैं वो जमात आपके हल्के की आवाम के वो मसाइल हल कर पाएगी? आपका जो वोट देने का मकसद है वो पूरा हो सकेगा? मुझे लग रहा है कि बहुत मुश्किल काम है ये मौजूदा दौर में काम करना। गवर्नमेंट की सिचुएशन आपके सामने है सारी, इतनी पार्टियाँ इक़्तिदार में आ गई हैं, तो काम बहुत मुश्किल है। तो फिर हमारे वोट देने का फ़ायदा हमें नहीं मिलेगा? बहुत मुश्किल है। तो फिर हम क्या करें? यही हो सकता है कि आस उम्मीद लगाएं नेक्स्ट इलेक्शन की, बस सब्र करें। सब्र ही करें बस। तो कब तक ये आवाम सब्र करेगी? हमारे ये मसाइल कब तक हल होंगे? बस जब तक एक गवर्नमेंट जो है ना अपने पैरों पे नहीं आएगी तब तक तो बहुत मुश्किल है। एक गवर्नमेंट आए अपने पैरों पे, आवाम की वोट से आए, तब जाकर हमारे मसले मसाइल हल होंगे। थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम अहवाल पेशावर, और हमने खैबर पख्तूनख्वा के कैपिटल पेशावर के मुख्तलिफ हल्के की आवाम के साथ किया और आपको बताया कि पेशावर की आवाम ने तहरीक इंसाफ को वोट दे के इस सूबे में हुकूमत दिलवाई। अब ये तहरीक इंसाफ हुकूमत पे लोगों का जो एतमाद है वो किस हद तक कामयाब हो सकेगा? आया तहरीक इंसाफ की हुकूमत अपने जो वोटर हैं, इनके सपोर्टर हैं, इनके जो मसाइल हैं वो हल कर पाएगी और इस सूबे को एक रोल मॉडल सूबा बना के आने वाले फिर इलेक्शन में इस सूबे को रोल मॉडल पेश करके पूरे पाकिस्तान में, मरकज़ में और पूरे पाकिस्तान में हुकूमत बना सकेगी या नहीं? इसी के साथ अपने मेज़बान मलिक हसैन मोहम्मद को दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।